Hello everyone. So today we are going to discuss topic number 3.13, that is Kirchhoff's law, right? But before we start that law, let us recall the series and parallel combinations of resistor. So if we have resistors which are in series, okay, then the connections are like this. मैंने अभी 3 resistor के लिए बनाया है, but you can make it for 2, 4, 5 n number of resistors, right? So R1, R2 and R3 they are connected in series, and if I want to replace it with a single resistor, then what is the equation, right? So that equation is R equivalent, मतलब इसकी वैल्यू that is equals to, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल करना है. So that is R1 plus R2 plus R3, right? Thereafter if we have resistors which are in parallel, और यहाँ पे आप देखो कि 3 resistors हैं and they are connected in parallel fashion. If I want to replace it with a single resistor, then what is the equation? So that equation can be given as R1 upon R equivalent can be given as 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, right? So this is the thing. Now there are few circuits which are very कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो एट दैट टाइम these two things are not enough to solve that circuit. वो सर्किट हम like it is difficult. Okay, so that's why we are using the Kirchhoff's rules. Okay, Kirchhoff's के दो rules हैं, right? First one is the junction rule, right? So before we understand the junction rule, I would like to tell you what is junction, right? So junction एक ऐसा point है, ऐसा एक node है जहाँ पे दो से ज्यादा branches available है, दो से ज्यादा wires हैं, वो वहां से pass हो रहे हैं. जैसे कि आप मान लो कि एक वायर ये है, ठीक है, और दूसरा वायर ये है, तो इसको हम junction नहीं बोलेंगे. It is just a straight connection. But if we consider something like this, तो आप बोलोगे कि A is a junction, node A is a junction, जहां पे दो से ज्यादा वायर्स आ रहे हैं, right? Okay. So what is a junction rule? So at any junction, sum of total of currents entering the junction, total currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction, right? तो ये दोनों इक्वल होते हैं. मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ. मान लो कि ये जंक्शन A है, ओके, और यहाँ पे we are having total 4 wires, right? Out of 4 wires, suppose the direction of current is this, right? मैं करंट के नाम भी दे देता हूँ, right? So let us say this is I1, I2, I3 and I4, okay. Now what we have to do के we have to sum, किसका टोटल करना है आपको? Entering the junction. तो आप देखो यहाँ पे कि कौन से ऐसे करंट्स हैं जो A की तरफ आ रहे हैं, that is known as the entering the junction. So I1 है, बाहर जा रहा है, I2 है, बाहर जा रहा है, I3 है, that is towards A, and I4 है, वो भी तो बाहर जा रहा है. So what I should write for this is on my left side I am just writing that I3 is entering the junction, okay, that equals to the currents leaving the junction. तो leaving मतलब दूर जा रहा है junction से. So over here we have I1 which is leaving the junction, I2 is also leaving the junction, and over here I4 is also leaving the junction, right? तो ये हो गया junction rule through which you can find out the relationship between the currents which are available in the circuit, right? तो इसको Kirchhoff's junction rule भी बोलते हैं, but its most popular name is Kirchhoff's current law, right? Current rule, okay? क्योंकि यहाँ पे हमें current का equation मिलता है, right? Now let us talk about the loop rule, ठीक है? तो लूप किसे बोलते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. लूप का मतलब क्या है कि एनी क्लोज्ड पाथ, राइट? कोई भी क्लोज पाथ हो जहां से एक स्टार्ट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, घूमते वापस आप उसी पॉइंट पे आते हो, लेकिन थ्रू सम सर्कल, थ्रू सम स्क्वायर, राइट? तो दैट इज नोन एज अ लूप.
सो इफ आई कंसीडर दैट देखो यहाँ पे ये सर्किट है, ठीक है, तो उसमें लूप कहाँ पे है? सो आई कैन से दैट दिस इज अ लूप, ये भी एक लूप है, फिर यहाँ से ये भी एक लूप है। सो दिस काइंड ऑफ लूप्स आर अवेलेबल। अभी हम एक सिंपल लूप दिखाते हैं, राइट? सो लेट अस से वी हैव अ रेजिस्टर एंड अ battery, right? Okay, so this is also a loop. So what they are saying is that changes in potential in any closed loop involving the resistors and cells in the loop is zero. क्या मतलब है इसका कि if I will start traveling through this loop, मान लो कि ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, राइट? सो इफ आई विल ट्रैवलिंग इन दिस लूप, तो इन सब का टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो टोटल है वो जीरो होगा। किस तरह से होगा मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। सो वी हैव, मान लो कि ये 10 वोल्ट है एंड द करंट इन द सर्किट इज I, ठीक है? तो क्या होगा कि व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसको बोलो A पॉइंट, A से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर B पे पहुंचूंगा, फिर C पे पहुंचूंगा, फिर D पे पहुंचूंगा और वापस A पे आऊंगा। सो दिस इज अ लूप, राइट? तो यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? सो A से B में कुछ नहीं है, फिर B to C में क्या है? वी हैव अ रेजिस्टर। अच्छा, अभी रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? It is providing it is like obstacle for the electrons, right? तो इसका मतलब होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप, ध्यान से देखना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 10 ओम इज माइनस ऑफ I क्यों लिखा है? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर, दैट इज I। तो I लिखा है मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, सो दैट इज 10 ओम। हो गया? माइनस क्यों लिखा है? व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं B से C जा रहा हूं और साथ में करंट है वो भी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। जब भी रेजिस्टर आएगा आपकी डायरेक्शन भी वही है, तब आपको माइनस लिखना है, राइट? ओके, सो दैट इज माइनस I into 10। फिर आओगे आप C to D के बीच में वी हैव 20 ओम रेजिस्टर, अगेन यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, जो भी डायरेक्शन है जर्नी की उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगेन यू विल पुट माइनस, so that is minus of 20 into I, resistor into the current flowing through that particular resistor, so that is I, and then after D to A के बीच में 10 वोल्ट है। ध्यान से देखो कि पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है फिर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, that means it is a rise in the potential energy। अगर पोटेंशियल एनर्जी में राइज हो रहा है तो मैं उसके लिए लिखूंगा प्लस एंड देन आफ्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो ये कितना है? 10 वोल्ट है एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, algebraic sum of the potential around any closed loop involving the resistors and cells in the loop is 0। okay, ठीक है? So is that clear now? okay, now we will take a example which is in detail। okay, ये दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए तो ही आप ये कर पाओगे, ठीक है? सो लेट अस सी द एग्जांपल। सो दिस फिगर इज गिवन इन योर बुक 3.22 की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको सर्किट दी गई है, सो स्टार्ट असाइनिंग द स्टार्ट लेबलिंग द नोड्स, जो भी नोड्स है उसको आप नाम देना शुरू कर दो। जंक्शन है तो उसको नाम देना शुरू कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बुक के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन आप कोई भी आर्बिट्ररी नाम दे सकते हो, ठीक है? सो दिस इज लेट अस से A, ठीक है? देन वी हैव B, देन वी हैव C, let us say this is D, then E is there, then let us say this is F, and let us say this is G। okay, so yeah, it is I have given according to the book, तो आप कभी भी टैली कर सकते हो इसलिए, right? so ये हो गया, right? फिर ऊपर आप जाओगे, then I have to give a name over here, this will be let us say H, ठीक है?
एक्चुअल में H और D दोनों सेम ही है, बिकॉज इनके बीच में कुछ नहीं है, H एंड D आर सेम, बट हमारे इट इज इजी टू ट्रेस आउट, इसलिए यहाँ पे हमने H को अलग से नाम दिया है, ठीक है। सो ये काम फर्स्ट स्टेप में हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? लेबल, आपको देने हैं लेबल्स, ठीक है। दूसरे में यू फाइंड आउट हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर, कितने कहां पे है जंक्शंस। देखो तो जंक्शंस का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा कनेक्शंस आते हैं, दो से ज्यादा वायर्स आते हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट के देखो ये A है वो एक जंक्शन है, राइट, एंड ओवर हियर D है वो एक जंक्शन है, और कहीं पे जंक्शन नहीं है। सो यू हैव आइडेंटिफाइड द जंक्शंस, राइट। थर्ड थिंग इज यू स्टार्ट शोइंग द करंट, राइट। अभी आपको करंट दिखाना है, राइट, और करंट दिखाने के लिए आपको जंक्शन के पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जंक्शन है, सो देयर मस्ट बी 3 टाइप्स ऑफ करंट। जंक्शन पे 3 टाइप्स के करंट होने वाले हैं, ठीक है। तो करंट का नाम भी लेबलिंग है, वो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो, लेकिन अभी मैं बुक के हिसाब से चलूंगा सो दैट यू कैन ट्रैक इट, राइट। तो इस करंट को मैंने बोल दिया I1। अभी क्वेश्चन इज कि मैंने इसमें अपर एरो ही क्यों किया? जरूरी नहीं है, आप चाहो तो डाउन एरो भी कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये हो गया I1, लेट अस से ये हो गया I2, राइट, एंड लेट अस से दिस वन इज I3, राइट। आप अपने हिसाब से कोई भी एरो की डायरेक्शन चूज कर सकते हो, राइट। What happens if in reality the direction of current is wrong? हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, तो क्या होगा? तो आंसर जब आएगा लास्ट में, उसमें करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी, राइट, और कुछ नहीं होगा, करंट की वैल्यू नेगेटिव में होगी। इट शोज दैट आवर एज्यूम डायरेक्शन वाज रॉन्ग, और कुछ नहीं होगा, एंड दैट इज आल्सो करेक्ट, वो आंसर भी करेक्ट माना जाएगा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट। फिर क्या होगा? देखो अभी आपको वंस यू हैव शोन द करंट्स, नाउ शो द लूप, ओके। इस नोड के हिसाब से अभी आपको लूप दिखानी है। तो लूप कहां पे है? यहाँ पे लूप मतलब एनी क्लोज्ड पाथ। तो अगर मैं ए से जर्नी स्टार्ट करता हूं तो वापस घूम फिर के मुझे ए पे ही आना है, लेकिन लाइक आई शुड नॉट रिवर्स, मुझे रिवर्स नहीं जाना है, मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, फिर भी मैं वापस ए पे आ जाना चाहूंगा, ठीक है। सो ओवर हियर आई एम स्टार्टिंग द जर्नी विथ ए, राइट, then after I am going in this direction, then after I am going to D, and then after again I am back to A। तो मेरी जर्नी क्या हुई? A से H, H to D, D to C, C to B, B to A, ये हो गई मेरी जर्नी, ओके। इसी डायरेक्शन में करंट है वो फ्लो होगा, राइट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये I1 करंट फ्लो होगा, सेम करंट I1 इज देयर, राइट। देन आफ्टर ओवर हियर देयर इज I1, फिर यहाँ क्या होगा? I1 होगा, राइट। यहाँ हमें स्टॉप हो जाना है, क्यों मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिर सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर, द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इज I2, यहाँ पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन D है वो भी एक जंक्शन है, राइट। सो ओवर हियर एज यू कैन सी I3 करंट इज कमिंग इन, I3 करंट इज कमिंग इन टू A, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी I3 ही आएगी, राइट, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये एक ही लाइन है, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे I3 करंट बाहर निकल रहा है, सो देयर मस्ट बी I3 करंट व्हिच इज एंटरिंग इनटू दैट वायर। समझ में आया, राइट। तो ये भी हो गया, राइट। दूसरी लूप आप देख सकते हो यहाँ पे, दूसरी लूप कौन सी है? यू कैन स्टार्ट विथ A, you can start with A G F E D C B, right? तो ये भी आपकी एक लूप हो सकती है, राइट, ओके, ओके, डन। यहाँ पे भी हम एरो दिखा सकते हैं, राइट, ओके। सो दीज आर द लूप्स, ओके। फिर क्या? इज देयर एनी अदर लूप? यस, देयर इज वन मोर लूप। आप A H D E F G ये वाली लूप भी तो कंसीडर कर सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप सभी लूप्स को मेंशन करो,
आपका काम इतना है कि जब भी आप लूप इक्वेशंस लिखो तो उसमें सभी अननोन्स है वो आ जाने चाहिए बस. ओके, so now it's time to apply the law. Fifth number is now you apply the laws. तो क्या है? फर्स्ट इज द जंक्शन रूल. जंक्शन कहां पे है? जंक्शन है वो ए पे है. ओके, तो इसको अगर आप देखोगे तो I3 is entering and I1 and I2 are leaving. So what I can write is I1 plus I2 is equals to I3. I3 is leaving, I1 and I2 sorry I1 and I2 are leaving and I3 is entering. तो ये हमने किसके हिसाब से लिखा है? It is due to the junction rule. ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया. राइट, दूसरा इक्वेशन मैं लिख रहा हूं विच इज विद द हेल्प ऑफ अ लूप रूल. ठीक है, तो लूप रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले लूप मेंशन करनी होती है. सो लूप ए बी सी डी ई देन एफ, ओके, देन जी एंड देन वापस ए. तो जब आप ए से स्टार्ट करते हो आपकी जर्नी ए पे खत्म होनी चाहिए. दैट मींस योर लूप इज नाउ कंप्लीटेड. इस लूप के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, बराबर ध्यान से देखना. सी, जंक्शन रूल इज वेरी इजी, लेकिन लूप का जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें हमें साइन चेंजेस का बराबर से ध्यान रखना होता है. ओके, सो आई एम राइटिंग इट. लेट अस स्टार्ट विथ ए. राइट, ए से हम कहां गए? बी. सॉरी, ए से हम बी गए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट है वो हमारी जर्नी की डायरेक्शन से हमें ऑपोजिट में मिल रहा है, सामने मिल रहा है. राइट, सो इट मींस दैट ओवर हियर आई हैव टू पुट अ प्लस साइन. ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस साइन लिखूंगा. तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 40 ओम के रेजिस्टर से I3 जितना. सो प्लस देन आफ्टर 40 I3. राइट, then after we have 1 ohm resistor, तो वो भी current and our traveling direction is different. अभी okay, as of now ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं. लेट अस मेक इट ए करंट की डायरेक्शन में हम ले लेते हैं. चलो, ए जी एफ ई डी सी बी एंड ए, ये वाला लेते हैं पहले, सो दैट इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो ए से जी में बीच में कुछ नहीं है, सो आई शुड नॉट राइट एनीथिंग. फिर आप गए जी टू एफ. तो जी टू एफ में आप नेगेटिव से पॉजिटिव में गए एंड यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो देयर इज अ राइज इन द पोटेंशियल. तो आप लिखोगे प्लस 80 वोल्ट. Then after there is a 1 ohm resistor and you are in the direction of the current. How much current is flowing through 1 ohm resistor? So it is I2. So I will write माइनस लिखना है, फिर आपको रेजिस्टर की वैल्यू लिखनी है और फिर आपको करंट लिखना है. हो गया? राइट. Then after again there will be a minus for this 20 ohm. How much current is flowing through this? So it is I2. So माइनस ऑफ रेजिस्टर की वैल्यू लिखो और उसके बाद जो करंट फ्लो हो रहा है वो लिखो. So that is minus of 20 I2. फिर आए आप D पे. D से C. बीच में 45 वोल्ट की बैटरी आ गई. 45 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो अगेन यू विल ऐड इट, सो इट इज 45. फिर आप गए C से B. अगेन यू आर इन सेम डायरेक्शन, लेकिन इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसमें से I3 करंट फ्लो हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर व्हिच इज 1 ohm and then after I will mention the value of the current which is I3. फिर आया 40 ohm. So 40 ohm के लिए same thing, 40 I3, right? And then you are back at point number A. जो भी जंक्शन था वहां पे आप वापस आ गए हो, इसीलिए this must be equals to 0. तो अभी इसको आप लिख सकते हो जैसे कि ये 80 वोल्ट है और यहाँ पे ये 45 वोल्ट है, राइट? सो इट विल बी 125 वोल्ट, राइट? फिर ये I2 है, ये भी I2 है, so I can write it like this 21 I2, right? And then after I can write, ये हो गया, yeah, 41 I3,
41i3 is equals to 0, राइट। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास अभी कितने इक्वेशन हुए? लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 था ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्या हमारे पास कितने अननोन है? देखो i1 है, i2 है, i3 है, किसी की भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इक्वेशन हमारे पास कितने हैं? दो इक्वेशन है, 3 अननोन है। तो हम मैथमेटिक्स के हिसाब से इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर 3 अननोन है तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन और कोई लूप से हम ले सकते हैं। तो लेट अस सी। सो थर्ड इक्वेशन हम लिख रहे हैं, लूप ले लेते हैं a h d c b एंड a, ठीक है। उसके लिए लिख रहे हैं हम, राइट। तो a से h के बीच में 30 ओम का रजिस्टर है, ओके। सो 30 ओम मल्टीप्लाइड विद हाउ मच करंट इज देयर? सो इट इज i1 हो गया इसका, राइट। देन आफ्टर d, h to d के बीच में कुछ नहीं है, d से c के बीच में 45 वोल्ट की बैटरी है। अगेन देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, तो साइन आएगा +45, राइट। देन आफ्टर c to b के बीच में भी है 1 ओम रजिस्टर, यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लिखेंगे माइनस ऑफ रजिस्टर की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द करंट व्हिच इज i3, राइट, ओके। देन आफ्टर b और a के बीच में we have 40 ohm resistor and the current through that resistor is i3 and is equals to 0. So now we have 3 equations, 1 2 and 3 equations है and 3 unknowns है। So this is a simultaneous equation, तो आप कोई भी elimination rule से आप इसको solve कर सकते हो, राइट। तो जो एग्जांपल नंबर 3.7 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीटली i1, i2 और i3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। और एक लूप मैं आपको दिखा देता हूं जो बुक में दी गई है, राइट। वो लूप है इट इज AHDE, या इट इज दिस लूप। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फोर्थ लूप, जस्ट फॉर आइडिया कि आपको इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है। So the loop is AHDEF GA। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, राइट। सो अगेन आई विल स्टार्ट विथ A। पहले आया 30 ओम का रजिस्टर, यू आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, सो इट इज 30 माइनस ऑफ 30 इनटू i1। फिर आप गए h to d, बीच में कुछ नहीं है। फिर आप गए d to e, तो बीच में आया 20 ओम का रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे i2 है वो आपकी जर्नी से ऑपोजिट में है। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड पुट अ पॉजिटिव साइन, सो दैट इज इक्वल्स टू +20i2 +20i2। देन आफ्टर e to f जा रहे हो आप, लेकिन करंट आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर से आप प्लस साइन को रखोगे, ओके। सो इट इज 1i2, राइट, इट इज 1 into i2। देन आफ्टर अगेन वी हैव अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। कैसे आया ड्रॉप? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आया है, ठीक है। सो फॉर दैट यू विल पुट -80, तो आप G पॉइंट पे आ गए और G से वापस A पे आ गए। From where you have started journey, you are back at that point. So this is equals to 0. So again you can simplify this, minus of 30 i1, 20 plus 1 is 21 i2 minus of 80 is equals to 0. तो इस तरह से आप लूप इक्वेशंस बड़े इजीली लिख सकते हो। इट इज प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे ये हो सकता है। सो प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं एग्जांपल नंबर 3.7 करवा रहा हूं। एक बार वो हो जाएगा तो ही आपका किरचॉफ्स का अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगा। सो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।